Yes, student. Good morning. I hope that you have completely watched my first lecture of integration. Now it is second lecture of integration, question number 12. In first lecture, we have fulfilled of the question number 11 up to the question number 11. Now watch to the question number 12. So see on the blackboard solution of this question. In such type of integration, we use the trick. What's the trick? Here is root x. Root x can be written as x raised to power 1 upon 2. So root x can be written as x raised to power 1 upon 2, and root x break up the denominator. डिनोमिनेटर को ब्रेक करेंगे, x क्यूब अपॉन रूट एक्स plus 3x upon root x plus 4 upon root x. Such type we can write, then we do that. Clear? Root x means 1 upon 2, power 1 upon 2. Now, x raised to power 3 and x raised to power 1 upon 2. You know the formula, exponential formula of class 8th and class 9th and class 10th also. Exponential formula is completely teach to us that a raised to power m and a raised to power n is equal to a to the power m minus n. If base is same and power is different, then power can be subtracted. Clear? Base is same here and power is different, then x raised to power 3 minus 1 upon 2. What we get? We get 5 upon 2. Clear? एलसीएम लेंगे, ये कैसे होगा अपने पास? इसको 1 मानेंगे या 2 एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास 6, यहाँ आ जाएगा 1, तो अपन 5 अपॉन 2 अपने पास आ जाएगा. तो पावर क्या हो जाएगी अपने पास? 5 अपॉन 2 x की. तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेट x रेज टू पावर 5 अपॉन 2. ये जो पूरा फिगर है, ये फिगर, दिस फिगर कैन बी रिटन एज सच टाइप बाय solution to this technique. Clear? Plus 3 is the constant value, no problem. Then here x raised to power 1 and here x raised to power 1 upon 2. Then 1 minus 1 upon 2 power होती है, क्या होता है? 1 is greater number, half is small number, positive value is greater, so you get 1 upon 2 equal to. Clear? एलसीएम लेंगे तो अपने पास 1 upon 2 आएगा, तो यहाँ क्या जाएगा अपने 3x raised to power 1 upon 2. Clear? Now plus 4 upon x raised to power 1 upon 2 को अपन लिख सकते हैं 4 upon x raised to power minus 1 upon 2. Clear? It is your. Now your question is to step of the solution. Question अपने solution की स्टेप पे आ चुका है. अब अपन इसका solution करेंगे. Integrate first this step, then this, then this. Clear? इसका इंटीग्रेशन करेंगे अपन. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, x raised to power 5 upon 2 dx plus integrate 3x dx 3x raised to power 1 upon 2 plus 4x raised to power minus 1 upon 2 dx. Clear? ऐसे लिख सकते हैं आप. Now x raised to 5 upon 2 जो पावर है, अपन ने x raised to power n का इंटीग्रेशन किया था, तो उसमें पावर प्लस 1 हो गई थी. यहाँ पर प्लस 1 होगी पावर. x raised to power 5 upon 2 plus 1 प्लस 3 कांस्टेंट है, 3 बाहर आ जाएगा. फिर x raised to power 1 upon 2 plus 1, यहाँ पर भी 5 upon 2 plus 1 नीचे आएगा, यहाँ पर भी 1 upon 2 plus 1 नीचे आएगा. क्लियर? डिनोमिनेटर में. एंड प्लस 4 x raised to power minus 1 upon 2 plus 1 minus 1 upon 2 plus 1 plus c.
c is any constant. क्लियर? इस तरीके से अपन इस स्टेप तक पहुंच चुके हैं. राइट डाउन दिस, वी प्रोसीड टू नेक्स्ट. यस स्टूडेंट, यहां तक अपन ने सॉल्व कर लिया था. वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड द क्वेश्चन टू दिस स्टेप. नाउ proceed to next step from this step. Then we get 5/2 plus 1. 5/2 plus 1 क्या होता है? इसके नीचे अपन 1 लगा देंगे, 2 एलसीएम लेंगे, 2 5 and 2 is equal to 7/2. तो क्या आ जाएगा अपने पास? 7/2 आ जाएगा. क्लियर? तो अपने पास यहां आ जाएगा x रेज टू पावर 7/2 एंड नीचे भी डिनोमिनेटर में भी 7/2 आएगा, डिनोमिनेटर में भी 7/2 आएगा. इस तरह से आप एडिशन करते समय पूरी सावधानी बरतेंगे और उसी सावधानी से आप एडिशन करेंगे. छोटी सी माइनर मिस्टेक आंसर नहीं आएगा माइनर मिस्टेक से भी. तो 5/2 से 2 1 जा 2, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस 1 2 जा 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, देन 7/2 वी गेट. क्लियर? इस तरीके से प्लस 3 हियर कांस्टेंट वैल्यू. क्लियर? देन 1/2 प्लस 1 हाफ प्लस 1 1.5 होता है. 1.5 को कैसे लिखते हैं? 1.5 को अपन 3/2 लिखते हैं. कभी कभी इस तरह से फास्ट कैलकुलेशन करनी पड़ती है. जैसे दिस इज 1, दिस इज हाफ. 1 and हाफ क्या होता है? आप जानते हो 1 and हाफ 1.5 होता है. 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं. तो 3/2 पर डायरेक्ट लिख दिया. इसको सोल्व करेंगे तो भी 3/2 ही आएगा इस तरीके से. क्लियर? तो 3/2 देन 4. 1 में से हाफ गया तो 1 में से हाफ गया तो हाफ x रेज टू पावर हाफ. अगेन हियर इज हाफ. क्लियर? 7/2 2/7 हो जाएगा रेसिप्रोकल होकर x रेज टू पावर 7/2. क्लियर? प्लस आपके पास यह हो जाएगा 2/3 हो जाएगा. तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा. 2/3 क्या हो जाएगा? एक्चुअली इसको ऐसे देखो 3 into 2/3. तो 3 से 3 कैंसिल आउट, तो 2 ऊपर बचेगा तो 2 यहां आ जाएगा. क्लियर? then x raised to power 3/2 plus again 4 into 2/1. ये रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो आपके पास 4 2 जा 8 आ जाएगा. 8 x raised to power 1/2 plus c. क्लियर? इस x raised to power 1/2 को आप रूट x लिख सकते हो. क्लियर? तो आपके पास ये अपने पास फाइनल आंसर आ जाएगा. रूट एक्स नहीं लिखोगे तो भी चलेगा और लिख दोगे तो भी चल जाएगा. तो ये आपका फाइनल आंसर है. राइट डाउन इट. Yes student, now we proceed to next question, question number 13. It is very important question because it has some specific trick, and trick is that x minus 1 is in denominator. We want to deduct this x minus 1 from the numerator. So we factorize the numerator. Here solution. What we have to do? We have to do the factorization of the numerator. In such type of factorization that x minus 1 it can be taken common out from the numerator. Clear? Such type of technique we have to use here. Clear? Then सॉल्यूशन में आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 dx. क्लियर? इक्वल टू see here carefully what we have to common out from this both term. There are x³ and x minus x². Then what can be taken common out from these two terms? You can take x² common out. You will left here x minus 1 plus, and what is the common in this and this?
in this and this, what can be taken out common? Only one can be taken out common. Clear? X minus 1 dx, then x minus 1 is common out, x square plus 1 remains, x minus 1 dx integrates, cancel out, x minus 1 to x minus 1 cancel out. Clear? Then what we get? We get integrate x square plus 1 dx. That's it. That's it, student. Now it is too easy to integrate this integration, because here is x square, then you should plus 1 upon 2 plus 1, then इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास x क्यूब प्लस 3 upon 3 plus x plus c. Answer. Clear? This is your final answer. So it's too easy. Write down this. Yes, student. Again, it's too easy question. So we have to solve this question. Again, same technique. It is a multiplicative factor. So root x multiplied to this term and this term. We know what is the root x. Root x means x raised to power 1 upon 2. So here root x is multiplied to 1. We get x raised to power 1 upon 2 minus root x is multiplied to x. Then x into x raised to power 1 upon 2. क्या होता है ये? x को x raised to power 1 upon 2 से multiply करेंगे तो 1 plus 1 upon 2 आएगी power. Clear? You very well known about the root a to the power m into a to the power n, then a to the power m plus n. Clear? Then 1 plus half. 1 plus half क्या होता है? 1 plus half अपने पास 3 upon 2 आ जाएगा. 1.5. 3 upon 2, 3 में 2 का भाग देंगे 1.5 आ जाएगा. Clear? Then x raised to power 3 upon 2 dx. x raised to power 1 upon 2 dx minus x raised to power 3 upon 2 dx equal to x raised to power 1 upon 2 plus 1 upon 2 plus 1 minus x raised to power 3 upon 2 plus 1 and 3 upon 2 plus 1 plus c. C is any constant. Then what you get? Half plus 1. Half plus 1 again. Half plus 1 again we get 3 upon 2. X raised to power 3 upon 2 and here 3 upon 2 in denominator minus 3 upon 2 plus 1. 3 upon 2 plus 1 को यहाँ सॉल्व करके देख लीजिए आप. 3 upon 2 plus 1 क्या होगा अपने पास? यहाँ 1 आ जाएगा. 2 3 plus 2 5 upon 2. क्लियर? तो ये आ जाएगी x raised to power 5 upon 2 and 5 upon 2 plus c. Clear? Now reciprocal this. Then you get 2 upon 3. Your final answer is क्या होगा? Final answer हो जाएगा आपके पास आंसर 2 upon 3 x raised to power 3 upon 2 minus 2 upon 5 x raised to power 5 upon 2 plus c. This is your final answer. Clear? Here if we multiplicative factor, then we multiply this to this term, this to this term, we get the result. Clear? Write down it. Yes, student. Now we take the question number 16. Question number 15 is the same as the question number 14. Same trick है. So question number 15 मैं आपके लिए छोड़ता हूँ. आप करना. मेरा मानना है कि आप इजी गोइंग कर लोगे क्वेश्चन नंबर 14 की टेक्निक से. नाउ क्वेश्चन नंबर 16 भी इट इज टू सिंपल क्वेश्चन, टू सिंपल सॉल्यूशन. फर्स्ट इंटीग्रेट दिस, फर्स्ट इंटीग्रेट दिस, फर्स्ट इंटीग्रेट दिस. देयर आर 3 टर्म्स, वन टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म. तो डिफरेंट इंटीग्रेशन करेंगे अपन. इसका इंटीग्रेशन करेंगे 2x का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस 3 cos x का इंटीग्रेशन करेंगे, प्लस e टू द पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे. डिफरेंट इंटीग्रेशन करेंगे. अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 2 इज कांस्टेंट, x रेज टू पावर 1, x रेज टू पावर 1 मतलब 1 प्लस 1, तो 2 कांस्टेंट आ जाएगा, x रेज टू पावर 1 प्लस 1.
एंड 1 प्लस 1, क्लियर, माइनस 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन मैंने पहले ही कहा था, इंटीग्रेशन इज एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन। देन cos x किसका डेरिवेटिव था, ये आपको अनुमान लगाना, cos x इसका डेरिवेटिव था, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो sin x का cos x होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा, क्या होगा, sin x होगा। sin x का cos x होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा, क्लियर, प्लस e x एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियली होता है, प्लस c इज द एनी कांस्टेंट, देन यू गेट द आंसर, इट इज वेरी सिंपल, 2 x raised to power 2 upon 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 sin x plus e to the power x plus c, it is your final answer, clear, write down this, it is too easy question, next question भी काफी easy है, write down this। Yes student, question number 18, question number 17 is same as the question number 16। 16 मैंने आपके सामने सोल्व करके बताया, 17 आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप कर लोगे, ये मेरा बहुत आपके ऊपर विश्वास है, यू आर टू इंटेलिजेंट एंड टू स्मार्ट बॉय, क्लियर, स्मार्ट स्टूडेंट, क्लियर। नाउ सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन काफी इजी है, नथिंग इन दिस क्वेश्चन, कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, इंटीग्रेशन मैंने पहले ही आपको कहा है, इट इज टू इजी, जब मैथमेटिक्स जोन के साथ जुड़े रहोगे सब इजी लगेगा आपको। तो आप इसको देखिए, sec x को इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो sec स्क्वायर x आ जाएगा, क्लियर, और ये आ जाएगा अपने पास, sec x को इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो sec x tan x आ जाएगा अपने पास, क्लियर। अब अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं अपन, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है sec स्क्वायर x का, आप चाहो तो इसको एक बार यूं लिख सकते हो, sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेट sec x tan x dx, क्लियर, अलग लिख लिया आपने। अब आपके पास sec स्क्वायर x किसका इंटीग्रेशन था, किसका डिफरेंशिएशन था, sec स्क्वायर x किसका डेरिवेटिव है, ये एग्जामिन करो, ये आपको पता है sec स्क्वायर x tan x का डेरिवेटिव है, देन इसका इंटीग्रेशन tan x होगा, प्लस sec x tan x किसका डेरिवेटिव था, sec x tan x sec x का डेरिवेटिव था, ये आपके पास आंसर आ गया, प्लस c लगा दीजिए, इट इज योर फाइनल आंसर, यू गेट जस्ट किल द क्वेश्चन, राइट डाउन दिस। Yes, now student, question number 19, it is very easy question, see here, solution। Here is numerator and here is denominator, such type of integration we can solve through the technique sec square x can be written as 1 upon cos square x, solution 1 upon cos square x, and cos square x can be written as 1 upon sin square x, clear, dx, clear, then what you get, you get 1 upon cos square x multiplied by sin square x upon 1 dx, clear, equal to what you get, sin square x and cos square x dx, what you get tan x dx plus tan square x, yes, sin square x upon cos square x, तो tan square x आएगा, tan square x को अब अपन कन्वर्ट करेंगे किसमें, tan square x can be written as according to the 10th trigonometry formulas, tan square x minus tan square x equal to 1 होता है, यहाँ पर माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस sec स्क्वायर x, और ये हो जाएगा आपको माइनस, इधर मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास sec स्क्वायर x, और ये प्लस का 1 है जो ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये माइनस दिस माइनस LHS में जो माइनस है वो RHS में जाएगा, RHS की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो यहाँ sec स्क्वायर माइनस है तो sec इट कैन बी रिटन एज tan स्क्वायर x
यहाँ पर टेन स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज सच टाइप सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, देन यू राइट हियर सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन dx। क्वेश्चन हो गया आपका, बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन हो गया। सेक स्क्वायर एक्स का अपन इंटीग्रेशन जानते हैं, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस c। आंसर यस दैट्स इट विच यू वांट, जो आप चाहते थे वो आपको मिल गया। इसका इंटीग्रेशन करना था, इसका इंटीग्रेशन अपन ने कर लिया। क्लियर, राइट डाउन इट। yes student, it is again too easy question. How it can be easy? Cos square, it is denominator, then break up the denominator. Break up the denominator means cos square x can be written as 2 upon cos square x minus 3 sin x upon cos square x. Such type 2 upon cos square x minus 3 sin x cos square x dx. Here now what we have to do, 2 upon cos square x, then we can write here 2 sec square x, this term. Now here 3 sin x upon cos square x, then sin x upon cos x मानते हुए एक बार tan x लिख देंगे, फिर cos x को और मानते हुए, मतलब ये cos square x can be written as cos x into cos x। क्लियर, देन sin x upon cos x क्या हो जाएगा अपने पास tan x, और फिर sin x upon cos x tan x हो गया। तो अब अपने पास क्या बच गया, डिनोमिनेटर में cos x बच गया और न्यूमरेटर में 1 बच गया। तो 1 upon cos x क्या होता है sec x होता है। क्लियर, इस तरह से अपन लिख देंगे। नाउ इसका इंटीग्रेशन, ये कांस्टेंट टर्म है तो इसको इंटीग्रेशन से पहले लिख देंगे dx माइनस 3 इंटीग्रेशन tan x sec x dx। क्लियर, नाउ 2 sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन अपन जानते हैं, sec स्क्वायर x किसका डेरिवेटिव है tan x का, तो इसका इंटीग्रेशन वापस tan x होगा, फंक्शन वापस आ जाएगा। तो tan x माइनस tan x से 3 a लिख जाएगा, tan x sec x किसका डेरिवेटिव था sec x का। क्लियर, तो ये देखिए इट इज योर फाइनल आंसर। क्लियर, दैट्स द आंसर यू वांट, राइट डाउन दिस। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 21 मैंने इसलिए नहीं लिया है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 21 काफी इजी है और वो आप कर लोगे, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 थोड़ा सा घुमा कर दिया हुआ क्वेश्चन है, इसको आपको ढंग से समझने की जरूरत है। बहुत अच्छा सा ट्विस्ट है, यह ध्यान से पढ़िए। इफ डेरिवेटिव ऑफ d ओवर dx डेरिवेटिव ऑफ fx इज इक्वल टू दिस, मतलब कोई फंक्शन है fx जिसका डेरिवेटिव ये है, मतलब f डैश x की वैल्यू है। क्या है अपने पास f डैश x है सच दैट f2 इक्वल टू 0, f2 दे रखा है, नॉट f डैश 2 है, f2 मतलब आप ये जो 2 है यहां पर पुटअप नहीं कर सकते हो। क्लियर, आपको ये 2 किस में पुटअप करना है, आपको जो fx आएगा ये क्या है अपने पास f डैश x है। d ओवर dx लिख दिया इसने कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन ये d ओवर dx एक्चुअली क्या होता है f डैश x होता है। तो f डैश x की वैल्यू ये है और अपन को f2 इक्वल टू 0 दे रखा है, तो आप यहां पर x की वैल्यू 2 नहीं पुट अप कर सकते हो, ये ध्यान रखना। क्लियर, देन fx इज, अब आपको fx की वैल्यू फाइंड करनी है कि fx क्या होगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, ये अपने पास f डैश x है तो अपन f डैश x से अपन fx निकालेंगे। अपने पास क्या था, सबसे पहले इंटीग्रेशन पढ़ा था, तो जो इंट्रोडक्शन पढ़ा था इंटीग्रेशन में अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़े थे, तो क्या था व्हेन fx डेरिवेटिव देन वी गेट f डैश x, अगेन f डैश x इंटीग्रेट देन वी गेट fx, ये पढ़ा था। तो सेम प्रोसीजर यहाँ f डैश x गिवन है, f डैश x गिवन है मतलब कोई एक फंक्शन ऐसा है
जिसका डेरिवेटिव अपन को गिवन है, अपन को वापस फंक्शन लाना है, उसके लिए अपन को इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। किसका? इसका। तो इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब माइनस 3/x⁴ dx इज इक्वल टू क्या होगा इंटीग्रेशन इसका? 4x⁴ + 1 एंड 3 + 1 माइनस 3, यहाँ x⁴ डिनोमिनेटर में है, तो आपके पास यहाँ आ जाएगा x⁻⁻4 लिख सकते हैं इसको। क्लियर? -4 लिखने के बाद we write x⁴ which is in denominator, we write this denominator in the form of numerator such type its power can be negative. आपने for the exponential law you already have studied in class 8, class 9, class 10. Clear? Then x⁻⁻4 + 1 -4 + 1. Clear? प्लस c। आपके पास ये रिजल्ट आएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो विद रेस्पेक्ट टू x। क्लियर? देन अब आप क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। 4x⁴ 4 से 4 कैंसल आउट। क्लियर? माइनस 3x⁻³ -3 क्लियर? -3 से 3 कैंसल आउट प्लस c। नाउ माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। आपके पास क्या हो जाएगा? माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा x⁴ माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 1/x⁴। इस x⁻³ को क्या लिख सकते हैं? 1/x⁴ लिख सकते हैं प्लस c। क्लियर? ये आपके पास fx आ गया। क्या आ गया? ये fx। देन इसको आप यूं भी लिख सकते हैं fx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो ये आपके पास fx की वैल्यू है। क्या है? fx की वैल्यू क्या है अपने पास? x⁻⁴ प्लस 1/x³ प्लस c। ये अपने पास ये वैल्यू है। क्लियर? इसके अंदर f2 रखेंगे। क्लियर? इफ दिस नाउ f2 is equal to 0, this implies 0 is given. This implies x⁻⁴ plus 1/x⁻³ plus c is equal to 0। यहां पर f(x) f2 = 0, तो यहां x की जगह अपन 2 पुट अप करेंगे, यहां पर भी x की जगह अपन 2 पुट अप करेंगे। अब अपने पास क्या आ रहा है रिजल्ट? दिस इंप्लाइज 2⁴ क्या होता है? 2⁴ होता है 16। क्लियर? प्लस 1/2⁵ क्या होता है? 8 प्लस c = 0। आप चाहो तो यहां पर इसको पूरा सोल्व करने के बाद इधर ले जा सकते हो RHS में, और इसको पहले उधर ले जाने के बाद भी सोल्व कर सकते हो। नो प्रॉब्लम, कोई भी टेक्निक करोगे बिल्कुल राइट होगी। बस एक चीज का ध्यान रखना स्टूडेंट, डोंट ब्रेक द रूल ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का कोई रूल नहीं टूटना चाहिए, और रूल टूटेगा तो आंसर रॉन्ग आएगा। रूल मतलब बोर्ड मास, एवरीथिंग, LHS से RHS ले जाना, LCM लेना, पर एवरीथिंग जो आपने अच्छी तरीके से मैथमेटिक्स में सीखा है उसका कोई रूल टूटना नहीं चाहिए। बस इतना सा ध्यान रखना। तो आप यहीं पर इसको LCM लेके सोल्व कर लो एक बार, और फिर उधर ले जाना। ठीक है? सोल्व दिस सिचुएशन। देन हियर इज 1, डिनोमिनेटर इज 8, 1 divided by 8 we get 8, 8 is multiplied to 60 we get 128 plus as it is, and 1, 8 divided by 8 we get 1, 1 is multiplied to 1 we get 1 plus c is equal to 0. This implies c is equal to, c यहाँ रह जाएगा, ये टर्म पूरी उधर, यहाँ क्या हो गया? 1 to 8 plus 1, तो 1 to 9 हो गया। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप
129 upon 8 plus c is equal to 0. This implies c is equal to minus 129 upon 8. ये c की वैल्यू क्या आ गई अपने पास माइनस 129 अपॉन 8. माइनस 129 अपॉन 8. एफ एक्स अपने पास क्या आया था? एफ एक्स अपने पास ये आया था. फाइनल आंसर ये अपने पास एफ एक्स आया था. क्लियर? ये अपने पास एफ एक्स आया था. इस एफ एक्स में माइनस 129 अपॉन 8 पुटअप करेंगे. यहाँ पे c की वैल्यू पुटअप करेंगे तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 129 अपॉन 8 माइनस 129 अपॉन 8. ऑप्शन ए इज राइट. व्हाट्स द क्वेश्चन? ऑप्शन ए इज राइट. ओके स्टूडेंट, राइट डाउन इट. Yes student, exercise 7.1 is complete. Now you practice very well and next topic में अपन exercise 7.2 पर डिस्कस करेंगे. और exercise 7.2 पर आने से पहले अपन उसके कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करेंगे. इंटीग्रेशन के 7.2 के कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं. पूरे कॉन्सेप्ट पर क्लियर इंट्रोडक्शन और पूरी बात करने के बाद अपन एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे. So watch the video and subscribe and like Mathematics Zone because next video जब भी आपके पास आएगा तब आपको उसकी अपडेट्स मिलती रहेगी. और अपडेट्स लेने के लिए सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है ताकि आपके मोबाइल पर आपको उसका लिंक मिल सके और आपके मोबाइल पर आपको नोटिफिकेशन आ सके. क्लियर? थैंक यू वेरी मच.